Hello friends, this is Vikash Kumar and you are watching Maths Easy. Today we are going to learn volume and surface area. Chapter is volume and surface area of mensuration, exercise number 2A. Okay friends, now move on the question number 1. Basically we know that what is the formula. In the previous classes, class 8, class 7, we have already know what is the formula, volume of a cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये सब हम लोग जानते हैं. उसी के आधार पर थोड़ा सा हम लोग फिर सब सवाल पढ़ेंगे. और वैसे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी आकर के मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है. 1 में वैसे 4 सवाल है ना. उसका हम लोग ए देख रहे हैं. लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, length of cuboid is equals to 12 centimeter. breadth of cuboid is equals to 8 centimeter. Okay, now and height of cuboid is equals to 4.5 centimeter. We have to find the volume, lateral surface area and total surface area of the cuboid. Now volume of a cuboid, we already know that volume of a cuboid is L into B into H, means length into breadth into height, means 12 into 8 into 4.5. and after solving this we got the answer 432 centimeter cube, and this is our volume of a cuboid. Now move on the lateral surface area. Lateral surface area, this is the short form of lateral surface area, LSA. Lateral surface area of cuboid, we know that the formula is 2 into L plus B into H. This is the formula. Then put the value of L, B and H. We get 2 into L means 12 plus B is 8 and into H is 4.5. Now solve this. 2 into 12 and 8 is 20 into 4.5, and after solving this we get 180 centimeter square. This is the lateral surface area. Now total surface area. Total surface area is 2 into LB plus BH plus HL is equals to 2 into LB means 12 into 8 plus BH means 8 into 4.5 and plus HL means 4.5 into 12, that is equals to 2 into 12 is 96 plus 4.5 into 8 is 36 plus 4.5 into 12 is 54, that is equals to 2 into 96 plus 36 plus 54 is 186, and that is equals to 372 centimeter square. दिस इज़ आवर आंसर. ये बहुत ही बेसिक मेथड से था, हम लोगों ने भी पिछले बार ये पढ़ा है, पिछले 7 क्लास 8 क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है. ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, उसका बिल्कुल ही इसी सेम फार्मूला पे बनाना है. क्वेश्चन नंबर 2 भी बस इसी फार्मूले पे डायरेक्ट बनेगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर द डायमेंशन ऑफ ए रूम इज 9 मीटर. Question number 3, the dimension of a room is 9 meter into 8 meter into 6.5 meter. It has one door of dimension 2 meter into 1.5 meter and the 2 windows of dimension 1.5 meter and 1.5 into 1 meter. Find the cost of whitewashing the walls. अच्छा, वाइट वॉशिंग हम लोगों को दोस्त करना है तो हम लोग को सिर्फ दीवारों पे वाइट वॉशिंग करना है ना. तो सबसे पहले गिवन है वो जो हम लोग लिख लेते हैं, है ना. गिवन है हमारे पास लेंथ, खिड़कियों पे तो नहीं करना है वाइट वॉशिंग, सिर्फ और सिर्फ दीवारों पे करना है. लेंथ ऑफ द रूम इज
9 मीटर। उसी तरह breadth of room is 8 meter and height of room is 6.5 मीटर। आप लोगों को एग्ज़ाम में भी सेम इसी तरह लिखना है, मतलब वर्ड्स में, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, है ना। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ डोर। अब हमारे पास देखिए 2 डोर्स है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ डोर। डोर सिर्फ एक ही है, लेंथ ऑफ डोर इज 2 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ डोर इज 1.5 मीटर। अब डोर जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ डोर इज L इंटू बी होता है रेक्टेंगुलर का, तो 2 इंटू 1.5 मीन्स 3 मीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली लेंथ ऑफ विंडो is equals to 1.5 meter and breadth of window is equals to 1 meter. Therefore area of window is equals to L into B means 1.5 into 1 means 1.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ एक विंडो का है, अब 2 विंडो का कितना होगा, 2 इंटू 1.5, है ना, तो 3 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग को वाइट वॉशिंग करना है, तो दीवारों पे सिर्फ वाइट वॉशिंग करना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना होगा हम लोग को, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। ओके, देयरफॉर area of 4 walls is 2 into length is 9, breadth is 8 into height is 6.5 meter. Okay, that is equals to 2 into 9 8 17 into 6.5, and after solving this we got 221 meter square. This is the area of 4 walls. अब क्या है, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, ये पूरे रूम की एरिया हो गई, विंडोज़ एंड डोर्स इंक्लूडेड। लेकिन हम लोग को वाइट वॉश करना है सिर्फ और सिर्फ वॉल्स पे, विंडोज़ और डोर्स पे नहीं करना है, तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग निकालेंगे। एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो और डोर का एरिया को दोनों को जोड़ के हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स में से माइनस कर देंगे, तो वो एरिया हमारा हो जाएगा सिर्फ वाइट वॉशिंग का, है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है हमारे पास 221 जो मैंने अभी यहाँ निकाला है, माइनस एरिया ऑफ डोर है 3 और एरिया ऑफ विंडोज़ भी है 3, दैट इज इक्वल्स टू 215 मीटर स्क्वायर। अब इस इतने एरिया को हम लोग को करना है वाइट वॉश, है ना। अब रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, अब हमारे पास रेट क्या है वाइट वॉशिंग का, तो हमारे पास है रेट है ₹6.40 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 6.40 इंटू एरिया 215, दैट इज इक्वल्स टू, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर 1376 रुपीज इज आवर आंसर गाइज। Now move on to question number 4. Question number 4 is how many planks of dimension 5 meter into 25 centimeter into 10 centimeter can be stored in a pit which is 20 meter long, 6 meter wide and 80 centimeter deep. कितने प्लैंक्स लगेंगे, सब प्लैंक्स का भी डायमेंशन दिया हुआ है और उस पिट का भी डायमेंशंस दिया हुआ है, गड्ढे का भी डायमेंशंस दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, गिवन है लेंथ ऑफ प्लैंक है हमारा
5 मीटर। उसी तरह ब्रेथ भी पता है हमको, ब्रेथ ऑफ प्लैंक इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे, मतलब 100 से डिवाइड देंगे तो 0.25 मीटर। एंड हाइट ऑफ प्लैंक इज 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड देंगे मीटर में लाने के लिए तो 0.1 मीटर। ये हो गया हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक है ना, हर एक प्लैंक का PLANK प्लैंक इज L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबाइडल है ना। तो 5 इंटू 0.25 इंटू 0.1 मीटर क्यूब। अभी हम फिलहाल इसको इसी तरह रहने देते हैं, ये है। उसका गिवन है पीट, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पीट भी निकालना होगा हम लोग को। उससे तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ पीट। लेंथ ऑफ पीट हमारे पास है 20 मीटर। breadth of pit is 6 meter, and height of pit is 80 centimeter, that is 0.8 meter. Therefore volume of plank is L into B into H, means 20 into 6 into 0.8 मीटर क्यूब। अब हम लोग कितने रिक्वायर्ड चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ प्लैंक्स चाहिए? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लैंक इज, कितने टोटल प्लैंक्स चाहिए गाइस? तो वॉल्यूम ऑफ पिट बाय वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, है ना, इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6 इंटू 0.8 वॉल्यूम ऑफ सॉरी ये पिट है, ये यहाँ पे पिट है, वॉल्यूम ऑफ पिट हमने यहाँ निकाला है 20 इंटू 6 इंटू 0.8, और वॉल्यूम ऑफ प्लैंक है 5 इंटू 0.25 इंटू 0.1। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, है ना। यहाँ से ये हटा करके यहाँ 2 0 दे देंगे। 25 4 जा 100, 5 4 जा ओके। तो दिस इज 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4, एंड वी गेट द आंसर 768, एंड 706 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब इतने प्लैंक लगेंगे हमें, है ना, इस गड्ढे को भरने के लिए। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियोस पसंद आया होगा। मैंने अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बता दिया है। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी देख सकते हैं। और ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या चाहिए। अगर जो चाहिए अगर वो हमसे नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।